Welcome all to my YouTube channel Shweta Gupta Chemistry Classes, and in class 11th we are doing the second chapter, Structure of Atom, and in that today we'll be doing earlier models of atoms. So the first model was Thomson's model of atom. So children, Thomson in 1898 proposed that an atom was a sphere of positive charge. As it is Thomson's model of atom, it means it is given by Thomson and it was given in the year 1898. And he proposed that atom is a, this is the atom. Atom is a positive sphere. That is, it has a sphere of positive charge. And an atom is stable as a result of repulsive forces between the electrons and their attraction towards the center of the positive sphere. Now children, he told about the stability of atom. He told that the atom is stable as there is a repulsion between these negative charges and attraction between the positive charge and the negative charge in the atom. So as a result of which the charges got balanced and the atom is stable. He compared this model with watermelon. So what happens in watermelon, children? If this is the red part of the watermelon, and these negative charge, that is the electron, these are the seeds. So it is also known as watermelon model. And children, he has also told that he can compare this model with raisin pudding. As you can see, if we make a pudding and in that we put some raisins, and these electrons are the raisins and this red part is the pudding. So this whole part is the pudding and these electrons are the raisins which are put into this. So it is raisin pudding model or watermelon model. Now he told that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. He said that the mass of the atom is uniformly distributed in this whole atom. As the charges are distributed in the atom, so the mass of the atom is uniformly distributed throughout this atom. Now children, this model failed because ये model इसलिए fail हुआ because this model was not able to show why the scattering occurs. अगर हम इस पे लाके कोई भी रेज को डालेंगे तो वो रेज स्कैटर करती हैं, तो वो जो रेज स्कैटर करती हैं तो उन रेज के स्कैटर करने का रीज़न थॉमसन नहीं एक्सप्लेन कर पाया. He could not able to explain the scattering of light on striking an atom. That's why this model failed. So what are the important points of this model? First one, given by Thomson. Atom was a sphere of positive charge. These dots are the positive charge and these are the negative charge which are distributed in this atom, this electrons. So next, stability of atom was a result between the repulsive forces of the electrons. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं और तो उस वजह से भी एटम स्टेबल होता है. और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे में पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है. तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बिकॉज दे आर ऑफ सेम चार्ज, सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. तो जो रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है उनकी वजह से जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो स्टेबल होता है. नेक्स्ट आई हैव टोल्ड यू वी आर कंपेयरिंग इट विद वाटरमेलन और रेजिन पुडिंग मॉडल. दिस यू ऑल अंडरस्टूड प्रॉपरली. आई जस्ट होप. ये पूरा का पूरा वाटरमेलन का रेड पार्ट है जिसमें कि ब्लैक कलर के सीड्स हैं, या फिर ये पूरी की पूरी पुडिंग है जिसमें कि ये ब्लैक कलर के जो हैं इट इज़ रेजिन्स. सो इसने उसको उससे कंपेयर किया. नेक्स्ट, जो मास ऑफ एटम होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द एटम. पूरे के पूरे एटम में
जो मास ऑफ एटम होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि जो चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से जो इस पूरे एटम का मास है वो पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. नेक्स्ट वन, लिमिटेशन. He could not satisfactorily explain the result of scattering experiment which was carried out by Rutherford, and thus it was rejected. Now children, next one we'll do the Rutherford's model of atom, which led to the discovery of nucleus. So here what Rutherford has taken, Rutherford in 1911 he performed a scattering experiment. Rutherford's model of atom. So in 1911 he performed scattering experiment, in which children, what he has taken a alpha particle, and the source of alpha particle was radium. So this radium he put in a block of lead. Rutherford put radium in a block of lead. Radium is the source of alpha particle. So he made these alpha rays to pass through a slit. Now children, what is the function of slit? The function of slit is to get a fine beam. It is to get a fine beam. It will pass through this and you will get a fine beam on passing through a slit. So alpha particle will be emitted by this radium and they will pass through the slit. Now what happens? Here he has taken then this is a thin foil of gold, and here this one is a zinc sulfide screen. So here he has taken the zinc sulfide screen, and this is the, what children, this is thin foil of gold. Now what happens? These alpha particles will move through the slit which are emitted by radium and will strike the thin gold foil. After it alpha particles strike the thin gold foil, it was detected with the help of this circular zinc sulfide screen. जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल मूव करा और उसने इस थिन गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करा, तो जो रेज निकले उनको हम लोगों ने कैसे पता करा कि रेज निकले हैं? इस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन की हेल्प से. नाउ वो पॉइंट जहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, सपोज अभी यहाँ पे स्ट्राइक करा तो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया स्ट्राइक करके, दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई दिया और तीसरा आपको यहाँ पर दिखाई दिया. तो ये जो दिखाई देता है आपको फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर. क्या हुआ? यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, थिन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करके वो स्कैटर कर दी बीम. जो स्कैटर्ड बीम है उसको हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई बीम ऑफ लाइट स्कैटर हुई है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको लाइट दिखाई देगी, फ्लैश ऑफ लाइट, यहाँ पर भी आपको फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देगी, यहाँ पर भी आपको फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से कोई पार्टिकल निकला है जिसने जाकर स्ट्राइक करा गोल्ड फॉइल पे और स्कैटर करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दी. नाउ व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट विच वर ऑब्जर्व्ड? जो ऑब्जर्वेशन दिखाई दिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो ये थे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज 99.99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल, they passed through the foil without undergoing any deflection. ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सपोज कीजिए 100% है अगर अल्फा पार्टिकल, तो उसमें से 99.9% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि इस गोल्ड फॉइल से डायरेक्टली पास हो गए थे. दे हैव पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन. उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करा, वो सीधा गए और इस गोल्ड फॉइल से के थ्रू पास हो गए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. नाउ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो करा स्मॉल एंगल्स में, जो कि स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए. सपोज कीजिए यहाँ पर स्ट्राइक करा अल्फा पार्टिकल ने एंड दे हैव डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल. बहुत थोड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट करके अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करा और थोड़े एंगल पे वो डिफ्लेक्ट करके. नाउ
very few, that is 1 in 20,000 were those who deflected back, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करा, वो डिफ्लेक्टेड थ्रू अ angle which was greater than 90%. Okay, so 3 things are seen here. Most of the alpha particle 99.99% मूव पास हो गए गोल्ड फॉइल के थ्रू, उन्होंने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, वो गए सीधा सीधा इसके थ्रू पास हो गए. फ्यू, बहुत थोड़े ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करा, लेकिन बहुत 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 कम ऐसे थे. वेरी फ्यू वर, that is 1 in 20,000 were such who were deflected through very large angle, that is वो deflected through a angle which was greater than 90 degree, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करा, मतलब एंगल जितना 90 डिग्री एंगल से भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करा. नाउ what are the conclusions drawn through all these observations? Most particles pass through the foil without deflection. मैंने अभी अभी आपको बताया ज़्यादातर पार्टिकल्स फॉइल के थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए गोल्ड फॉइल के थ्रू. इट मीन्स सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस मस्ट बी देयर इन एन एटम. एटम में बहुत सारी जगह खाली होगी, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो आराम से उस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए. जो गोल्ड का एटम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली होगा, जिसकी वजह से वो किसी से टकराया नहीं ज़्यादातर रेज, और ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स को टकराने के लिए कोई मटेरियल मिला ही नहीं एटम में. इसका मतलब ज़्यादातर पार्ट एटम का कैसा होता है, एम्प्टी होता है. नेक्स्ट वन, फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. सेकेंड ऑब्जर्वेशन आई हैव टोल्ड यू कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हुए. एंड चिल्ड्रन, वी नो दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सो व्हेन दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक some positive charge in an atom, so that's why they got deflected. जब कोई पॉजिटिव चार्ज जाकर एटम के किसी पॉजिटिव चार्ज में स्ट्राइक करेगा, जब कोई पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये गया और एटम के किसी पॉजिटिव चार्ज में टकरा गया, तो जब वो टकराए तो थोड़ा स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड वर दोज विच पास्ड वेरी क्लोज टू दिस बॉडी, positive body. Now children, what I have told you, पहला first observation, first conclusion from the observation, most of the alpha particles pass through the foil without going any deflection. कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इन दिस एटम इज एम्प्टी. सेकेंड वन, कुछ ऐसे थे जिनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ. स्मॉल डिफ्लेक्शन कंडीशन आई टेल यू व्हाट हैपन्स. सपोज अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं इस गोल्ड फॉइल से, पर वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरे हैं. तो जब वो पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरे हैं तो पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो इट विल रिपेल, सो दे विल एक्सपीरियंस अ स्मॉल डिफ्लेक्शन. थोड़े से एंगल का डिफ्लेक्शन वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे. तो वो जो फ्यू पार्टिकल्स थे जिन्होंने स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन शो करा था, वो पार्टिकल्स थे जो इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरे थे, बिल्कुल पास से गुजरे थे. तो दीज वर दोज अल्फा पार्टिकल्स विच शोज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल्स. नाउ आई हैव टोल्ड यू 1 in 20,000, third observation, 1 in 20,000 alpha particles were those which showed deflection of more than 90 degree. तो वो कौन हो सकते हैं? Alpha particles are heavy particles, and suppose these are the alpha particles coming from the radium. Suppose they are heavy particles. If they strike a positively charged body, that is positive, so if positive will strike a positive charge, so large deflection will be showed. बहुत ज़्यादा एंगल का डिफ्लेक्शन शो करेगा और वो डिफ्लेक्शन विल बी मोर देन 90 डिग्री एंगल. इसका मतलब कि कोई एक हैवी बॉडी है एटम में जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है. ओके, सो दिस वाज द कंक्लूजन ड्रॉन, एंड दैट हैवी बॉडी इज़ ऑक्यूपाइंग अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम. उस हैवी बॉडी ने बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती तो बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते जो
लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते ऑफ मोर देन 90 डिग्री एंगल, पर बहुत थोड़े ने शो करा लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब बहुत थोड़ा स्पेस न्यूक्लियस में ऐसा है जो इस पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब उस पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी को उसने क्या नेम दिया? ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। ओके चिल्ड्रन, नाउ according to Rutherford's model of atom, an atom consists of two parts. One is nucleus. Nucleus is very small in size, children, and the nucleus carries a positive charge. Nucleus is very small in size. Rutherford ने बोला न्यूक्लियस होता है और उसका बहुत छोटा चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पूरे के पूरे एटम का मास सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। The mass of this atom is concentrated in the center of the atom. जो entire mass of atom होता है is concentrated in the nucleus. Now next one, he also told about the extranuclear part. He told that in the center it is nucleus, positively charged body, and the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus. Next, extranuclear part is there. It is a part around the nucleus in which electrons are distributed. So it is extranuclear part is the part around the nucleus where the electrons are distributed. Rutherford told that these electrons revolve around the nucleus. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स comes into act as a result of revolution of or revolving of these electrons around the nucleus in a circular orbit. A centrifugal force come into account and this centrifugal force balances the force of attraction. ये जो centrifugal force, children, centrifugal force comes into action whenever a body moves around a circular in a circular orbit. देखो जैसे कि हमारा सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम में सन इज इन द सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है. सो सेम सिस्टम ही हैज टोल्ड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन electrons revolve around the nucleus in circular orbit, and as a result of which it balances the force of attraction and therefore it is stable in nature. So I just hope children this one is clear to you all. If you have any doubt then you can write in the comment section. Till then, thank you all and take care and have a nice day.